جناب السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان جناب عدنان حیدر صاحب، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آج مٹیریل بہت عدنان حیدر ہیں جی، یہ عدنان حیدر ہیں، مبادا کے یہ میلے میں کھو جائیں اور آپ پھر اس کو مس کریں. عدنان حیدر بھائی، آج ہمارے پاس جی بہت زیادہ میٹر ہے، سو ہمیں آج اپنے شو کی جو ہے پیس وہ ذرا بہت تیز رکھنا پڑے گی. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کل ہم نے جو شو کیا تھا اس میں یہاں اسلام آباد کے قریب راولپنڈی کا حلقہ ہے جی، وہاں سے اکثر چودھری نثار علی خان الیکٹ ہوتے رہے ہیں، اور یا پھر 2018 میں ان کے پرانے دیرینہ جو حریف رہے ہیں سرور خان صاحب، وہ الیکٹ ہوتے رہے. تو کل ہم نے بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ابھی جو نیا روپ آ رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا اور نواز شریف صاحب کا، تو ان کے بہت پرانے نظریاتی ٹائپ کے کارکن جو ہیں اس کے بارے میں بہت فسردہ ہیں، اور خاص طور پر ان میں سے ان کا یہ خیال ہے کہ یہاں پر اس حلقے سے، یہ چودھری نثار اور سرور خان صاحب سے منسوب حلقے سے جو ٹکٹ ہے وہ ایک باقاعدہ کسی سیاسی ورکر کو نہیں مل رہی، ایک بہت امیر شخص کو مل رہی ہے جن کا کوئی واسطہ نہیں دور پورے سے. حالانکہ ان کے مقابلے میں قمر اسلام صاحب بیچارے انجینئر وہ دن رات امام میں گھومتے تھے. خیر، وہ کلپ چلنے کے بعد مجھے کم از کم 3 کے قریب کارکنوں نے، جو کہ بہت زیادہ اپنی قیادت کے قریب بھی ہیں، انہوں نے وہ کلپ بقول ان کے انہوں نے قیادت کو بھیجی، اور قیادت نے ان کو کہا کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے، پارلیمانی بورڈ کو مکمل اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چن کر دیں، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی بھی حلقے کے بارے میں کسی بھی شخص کو جو ہے وہ فائنل کر لیا گیا ہے. اور جس شخصیت کی جانب ہم اشارہ کر رہے تھے کہ وہ انجینئر صاحب کو پچھاڑتے ہوئے جو ہے وہ ٹکٹ حاصل کر لیں گے، ان کا نام تو دور تک وہاں گونج نہیں رہا اللہ ہے. ایسا ہو، لیکن وہ بڑے انفلوئنشل ہیں بابو. مجھے تو جو کہا گیا طاقتور، کل والا کلپ میں سن لوں، کیونکہ میں تھوڑا سا نا جو آپ نے کل بولا ہے جی ہاں وہ سن لیں جی، تاکہ میں پھر تاکہ لوگوں کو بھی کلیئر ہو جائے کہ میں کیا ریفرنس کر رہا تھا. ویسے غریبوں کے ملک میں امیروں کی بہت سنی جاتی ہے. ارے بابو، بات یہ ہے کہ جن صاحبان نے میرے ساتھ بات کی تو امانت ہوتی ہے ان کی. پاکستان مسلم لیگ کی قیادت کے ساتھ جو واٹس ایپ میسیجز ایکسچینج ہوئے ہیں، انہوں نے مجھے اس کے اسکرین شاٹس بھی بھیجے تھے، تو لہٰذا میں مجبور ہوں، مینیج کر دیا جائے بھیا میں مجبور ہوں کہ ان کی بات پہ میں اعتبار کروں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ حلقہ، یہ لوگوں کی خام خیالی ہے کہ ان کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کو امیدوار دیے جا رہے ہیں. حالانکہ میں اس بات کو نہیں مانتا. بس سن تو لو نا، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو کہ ان کا خیال ہے کہ لوگوں کو یہ خام خیالی ہے کہ نواز شریف صاحب کو امیدوار دیے جا رہے ہیں. میں ان کی اس بات کو تو ماننے کو تیار ہوں جو انہوں نے اس مخصوص حلقے کے بارے میں کہی ہے قمر الاسلام صاحب کے حوالے سے، لیکن میں اس بات کو خام خیالی نہیں کہوں گا کہ نواز شریف صاحب کو آئندہ الیکشن میں حصہ لینے کے لیے امیدوار دیے جا رہے ہیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو میاں صاحب آج کوئٹہ کیوں جاتے؟ ہاں، ایم کیو ایم کے بعد باپ کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ اتنی سی بات ہے. ہم کسی سے بات بھی کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں جو وہاں گراؤنڈ پہ موجود ہیں ہمارے دوست، ان سے بات کی جائے تو زیادہ بہتر ہے. ان کو آپ ویلکم کیجیے. سید علی شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ کو ہم نے تنگ کیا، ایک مصروف دن ہوگا آپ کا. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ نواز شریف کی اترتے ہی ملاقات کن رہنماؤں سے ہوئی، اور کون سے بلوچستان کے بڑے رہنما وہ نواز شریف صاحب سے ملاقات کے بعد نون لیگ کا حصہ بننے جا رہے ہیں، اور اناؤنس کب ہوگا؟ آج ہوگا، کل ہوگا؟ کیونکہ آج سنا یہی ہے کہ نواز شریف کوئٹہ میں ہی ہیں. بہت شکریہ نصرت جاوید صاحب اور آپ دوسرے ساتھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نصرت صاحب نے خود بتا دیا، آج میاں صاحب کوئی 6 سال کے بعد آج کوئٹہ تشریف لائے ہیں، اور یہاں پہ مقامی ہوٹل ہے، اس میں بہت زیادہ رش بھی ہے. اچھا، جو ہمارے دیکھنے والے ہیں اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے، اب تک جو بریک تھرو ہوا ہے، جو الیکٹیبلز ہے، ایک تو بلوچستان کی جو الیکٹیبلز ہے وہ زیادہ ان کی، یعنی بہت زیادہ تجربہ ہے ان کا. 70 سے لے کے جب سے بلوچستان کو صوبے کا اسٹیٹس ملا ہے 2023 تک یہ کسی نہ کسی صورت میں یہاں پر حکومتوں کا حصہ رہے ہیں. ان میں قابل ذکر، اب سے تھوڑی دیر پہلے میں وہاں اس ہوٹل میں خود موجود تھا، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان،
इसी तरह जो साबिका हुक्मरान जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी, इससे ताल्लुक रखने वाले जो साबिक सूबाई वज़रा है, इनमें सरदार अब्दुर्रहमान केतरान, नूर मोहम्मद दुमर, सरदार मसूद लोनी, तोर उस्मान खेल, मोहम्मद खान लेडी, इस तरह के काफी नाम है। यानी मैं आपको बता सकता हूं कि 20 से जायद जो मजबूत इलेक्टेबल्स है वो इस वक्त में रस्मी तौर पर पीएमएलएन में ऐलान कर चुके हैं। कल ऐसी एक मिनट शाह साहब, दो बातें हैं, वो जरा चूंकि आप वहां मौजूद हैं ना, तो मैं उसके बारे में क्लियर होना चाहता हूं। एक तो ये सुनने में आ रहा है कि जी बाप के साथ कोई इंतखाबी इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट की जाए। एक ये है कि नहीं, बाप के वो लोग जो मुस्लिम लीग से गए थे या मजीद आना चाहते हैं वो सारे वापस अपनी मदर पार्टी में आ जाएं। तो इन दोनों में से आपके ख्याल में कौन सी लाइन प्रिवेल कर रही है इस वक्त? देखिए, जो बात प्रिवेल कर रही है नुसरत साहब, वो ये है कि आज नवाबजादा खालिद मक्सी जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नौ मुंतखब सदर है, उन्होंने मुलाकात की है। ये इंतखाबी अलायंस के हवाले से उन्होंने मियां साहब के साथ बातचीत की है और ब्रेक थ्रू तकरीबन हुआ है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस नुसरत साहब, आज डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच जो साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान है, उन्होंने भी मुलाकात की है। इसके अलावा पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी जो अचिकजई साहब की पार्टी है, उनका भी एक डेलीगेशन जो है उन्होंने मियां साहब से मुलाकात की है। इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम तशरीफ नहीं लाए। एक मिनट शाह साहब, क्या नहीं लाए थे? उनके नवाब आयस खान जो गिजई है, अब्दुल कहार वदान है, जो उनके सेकंड कैडर के जो लोग हैं रियादत, उन्होंने आज मियां साहब से मुलाकात की है। तो चार अहम पॉलिटिकल पार्टी जिसमें नेशनल पार्टी है, साथ ही पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, बाप पार्टी है और जेयूआई है। अब जाहिर है इन तमाम जो चार पॉलिटिकल पार्टीज है, इनका अपना एक इलेक्टोरल बेस है बलूचिस्तान में। तो इससे इन आज की मुलाकात से ये पता चल रहा है कि ये पार्टी के साथ फ्यूचर में एक इलेक्टोरल अलायंस बनाने जा रही है। और खुद थोड़ा सा बता दूं, पीएमएलएन जाहिर 5 साल तक एक डेड पॉलिटिकल पार्टी थी बलूचिस्तान में। 2018 में एक एमपीए का सीट था उनके पास, नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी, वो आपने देखा पीडीएम बना। पीडीएम के नतीजे में नवाब सनाउल्लाह जो है नाराज होकर पीपल्स पार्टी में चले गए। तो अब ऐसा लग रहा है कि एक मतलब फिर जिस तरह 2013 में पीएमएलएन बलूचिस्तान में एक बड़े पार्लिमानी जमात के तौर पर उभर कर सामने आई थी, आज इन शमूलियतों से ये अंदाजा लग रहा है कि ये नेक्स्ट जो 2024 के इलेक्शंस है उसमें भी पीएमएलएन जो है। एक बात क्लियर कर दीजिएगा, क्या आप इस बात के इम्कानात भी देख रहे हैं कि 2013 की तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बजाय इब्तदान किसी और को, मिसाल के तौर पर डॉक्टर मालिक साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया था, इस दफा वो कहे कि नहीं चीफ मिनिस्टर हमारा होगा और बाकी जिसने शामिल होना है मखलूत हुकूमत में वो शामिल हो जाए, और उनके पास ये नंबर हो सकते हैं? नंबर तो तकरीबन ऐसा लग रहा है कि नुसरत साहब पीएमएलएन के ज्यादा होंगे। अब ज्यादा तो पहले भी थे, 26-25 सीटें उनके पास थी, लेकिन स्ट्रेटेजिक मूव किया। बलूचिस्तान के मखसूस हालात है, आपको बखूबी पता है। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की 7 सीटें थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, डॉक्टर साहब को बनना चाहिए। अब मियां साहब एट द 11th आवर कोई भी फैसला कर सकते हैं, लेकिन यह है कि आज इन मुलाकातों से मेरे ख्याल में अगर फ्यूचर की हम मैपिंग करें या उसका एक तजिया करें तो उससे ये देखिए, अब यहाँ पे ये कहना भी जरूरी है कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी बीएनपी जो सरदार अख्तर जान मेंगल की पार्टी है, उनसे आज यानी आज की तारीख जब मैं आपसे बात करूं, उनका कोई डेलीगेशन नहीं आया है। तो इसका मतलब ये है कि उनका झुकाव जो है, टिल्ट क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ है। कोई इस तरह की स्मेल आ रही है, ये जो सारा इत्तेहाद हो रहा है। हमारे यहाँ जो लतीफा एक मशहूर है ना कि वो देहाती कहता है मेरा रुमाल चुराने के लिए था, कि शायद अख्तर मेंगल साहब को कट टू साइज करने के लिए भी हो रहा है। ये मुझे शुबा है, आप इसको तस्दीक या तरदीद? देखिए सर, उसमें जाहिर है अगर अख्तर मेंगल साहब उनकी पार्टी आज गैरहाजिर रही है और ये 4 जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है जिनके अपना जेयूआईएफ है, उनका पश्तून डोमिनेटेड एरियाज में भी बलूचिस्तान का वहां पर असर है, इसी तरह बलोच इलाकों में अब है। अब काफी इलेक्टेबल्स जो है वो जेयूआईएफ का हिस्सा बन चुके हैं।
अच्छा, ये टाइम की भी कमी है शाह साहब टाइम की कमी है, जरा इसको दो चीजें क्लियर कर दें, एक ही सवाल में दोनों पूछ रहा हूं। एक तो जाम कमाल की जानिब से ये आया था कि वो नून लीग का हिस्सा बनेंगे। आपने शुरू में कहा कि 20 से ज्यादा इलेक्टेबल्स नून में शायद चले जाएंगे, और फिर आपने नुसरत साहब को ये कहा कि बाप इंडिपेंडेंट, मगजी साहब मिले तो बाप अपना इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेगी। तो ये जरा क्लियर कीजिएगा कि बाप का वजूद भी रहेगा और नून लीग में भी लोग रहेंगे। एक दूसरा ये बताइएगा कि क्या ये जो नवाज शरीफ साहब गए हैं, जो वफ्द मिलने आए हैं और लोग मिलने आए हैं, इनको इनवाइट किया गया है या खुद आए हैं? क्योंकि अगर इनवाइट किया गया है तो फिर मिंगल साहब को इनविटेशन नहीं भेजा गया। देखिए अदनान हैदर साहब, ये बड़ा आपने स्ट्रेटेजिक सवाल किया। एक बात बहुत क्लियर है कि बाप पार्टी का वजूद बरकरार है। बाप के 4 या 5 MP जरूर असेंबली में आएंगे, और आज बाप के अरकान अगर मियां साहब से मुलाकात कर रहे हैं, चीजें बहुत वाजे है। PMLN की अपनी एक पार्लिमानी पोजीशन होगी, इसी तरह जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नुसरत साहब को पता है अब अतीकजई साहब की पार्टी मिल रही है, डॉक्टर मालिक बलोच साहब मिल रहे हैं। तो इससे आपको अंदाजा होता है कि 2024 में बलूचिस्तान में क्या होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नुसरत मेरे साहब। भाई। इस तज्जिए के बाद देखिए के बाद मेरा हक बनता है मैं सवाल पूछूं आपसे। मुझसे हाँ, शाह साहब से पूछना था। मैं शाह साहब से तो मैंने ले लिया ना तज्जिया। देखिए मैं अब उनके तज्जिए पे बेस्ड कर रहा हूं। आए बिस्मिल्लाह। हाँ, नवाज शरीफ इज डूइंग अ प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। कैसे वो हो, बताओ ना कैसे। सर ये जो आपने जिनको सुना कहा है, गद्दार और जिनको कहा कि इनकी जगह तो वो होती है, लोटों की जहां होती है, उनको कहना दिस इज द पॉलिटिक्स। मैं आपके घर आ गया हूं, आ जाओ वापस, दिस इज द पॉलिटिक्स। मेरा खेमा खुला है आपके लिए। दूसरा अच्छा, साहब, ये प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं आपको अक्सर कहता हूं कि सियासी दाव पेच को समझा करें आप। ये ठंडे कमरों में बैठ जाते हैं, सुबह उठ के आप लॉन में बैठ के बहुत नहीं, जरा खोलिए, सिखाइए ना। मैं सीख रहा हूं आपसे। सर नवाज शरीफ इज डूइंग अ वेल डन पॉलिटिक्स। जितनी अच्छी मूव नवाज शरीफ चल रहा है, इतनी अच्छी मूव चल रहा है कि उनको कहा गया है बलूचिस्तान ले लें, हैं? लेकिन पंजाब में जो है वो आपका वजीर आला नहीं होगा। अच्छा, आप ही ने मुझे बताया था यार। नहीं सुन तो ले। नहीं, ये आपने बताया था मुझे। देखो, जिसका क्रेडिट है मैं उसको दे रहा हूँ। आपका दावा है ये। आपके बारे में वो बना है, साकी ने कुछ मिला न दिया हो। आप जब जरूरत से ज्यादा नवाज शरीफ साहब को ये साबित करने पे आ जाए कि उनसे ज्यादा प्रैक्टिकल शख्स जो है वो पैदा ही नहीं हुआ, तो भाई मेरा माथा छिनक जाता है। और फिर आपकी बात मेरे ध्यान में गूंजती रही कि उन्हें कहा जा रहा है कि देखिए साहब, ऐसा कीजिए कि बलूचिस्तान आप मेन स्ट्रीम पार्टी हैं, आप माशाल्लाह चीन के साथ सीपैक और ये वो और SIFC और आप सारे प्रोजेक्ट बलूचिस्तान में हुकूमत आपकी हो, बहुत आसानी हो जाएगी माशाल्लाह विद योर बैकग्राउंड। लेकिन एक मेहरबानी करें, रिकॉर्ड एक ताड़ा तो पंजाब की वजारत आला जो है ना। अच्छा, उसमें भी ये नहीं कहा उन्होंने कि पंजाब छोड़ दें, वजारत आला की बात है, लेकिन उसमें बड़े स्टेक्स रहेंगे नून लीग के। तो अच्छी बात है ना कि एक बड़ा सूबा भी मिल गया बलूचिस्तान, और पंजाब में आप बात सुन मेरी, ये मियां साहब जो हैं, सुनो मेरी बात, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा को पंजाब 1993 में भी नहीं दिया गया। टोटल कितनी सीटें थी मंजूर अहमद भट्टो के पास? थोड़ी है, 10-12 ही होनी चाहिए। टोटल मिला के एक वक्त जो है 19 से ज्यादा नहीं। अब इतनी होंगी, ठीक है। कम से पहले भी 2000 परवेज इलाही के पास भी देख लेना, तारीख है। हाँ। लेकिन क्या 2018 में खान साहब को भी ये मशवरा नहीं दिया गया था कि आप ऐसा करें कि परवेज इलाही को वजीर आला बना दें? जब वो नहीं हुआ तो बाद में भी बुजदार को डिसमिस करवा के तो बिलाखिर कुछ दिनों को तो काफ रही ना, यानी कि परवेज साहब काफ नहीं रहे थे ना। उसके बाद बिलाखिर वो तहरीक इंसाफ में गए। दुरुस्त है ना बात? सवाल उठता है नवाज शरीफ साहब, मेरी दानिश में मियाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी आज मैं आपके साथ चेक नहीं करना चाहता। मौजू हमारे पास चूंकि जरा थोड़ा सा स्प्रेड हो गए हैं बहुत ज्यादा। सर हुजूर, नवाज शरीफ साहब को पूरा चांद दे दो, सितारे दे दो, मैं पंजाब नहीं दूंगा। वो पंजाब नहीं जाऊंगी ना। हाँ, हाँ, ये कॉम्प्रोमाइज हो सकता है कि
शरीफ खानदान में से कोई वजीर आला न बने तो वो कसूर के बन जाए वो जो मलिक साहब ने। आप ठीक कह रहे हैं। नहीं अच्छा वो लेकिन वो होगा मुस्लिम लीगी, नामजद करदा भी नवाज शरीफ साहब का होगा और ऑप्शन एक है आपके- PMLN नून का होगा। आपके ज़माने वरना ये कहेंगे कि मैं ऑपोजिशन में बैठने को तैयार हूं, मैं हुकूमत नहीं लूंगा। ये बात आज आपके याद जमाने रखना। में MCQs वाले पेपर नहीं होते थे। MCQ क्या होता है? वो सर जो 2 ऑप्शन देते उन्होंने क्या होता है? सुन तो लो ना। ABC हाँ, नहीं 2 ही सी नहीं अड्डे तुझी लाड लेना अच्छा, पड़ो। MCQ वजारत आला वजारत उस्मा एक चुन लो। वो कहे मैं नहीं लेता वजारत उसमें, एडा सियाना ते आया क्यों सी? तो बस फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि बहुत प्रैक्टिकल नुसरत हो गए, साहब- ओ भाई अगर इतने प्रैक्टिकल हो गए हैं कि सब कुछ करवा के आखिर में ये है कि जी पंजाब का यानी बलूचिस्तान का वजीर आला आपका नॉमिनी होगा और आप दरी सना जो है वजारत उस्मा में वापस आके अपनी अना बहाल कर लीजिएगा नुसरत साहब और देखें, अल्लाह अल्लाह कीजिए। विजडम सिर्फ आपकी मोनोपोली नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हकाइक समझिए। मैं इसीलिए कहता हूं सियासत को जरा समझा करें, मूव्स देखें पॉलिटिकल लीडर्स की। नवाज शरीफ का क्वेटा में लैंड करना मेरी बात को मजीद तक आप यानी ये कहना ये चाह रहे हैं कि बिल आखिर नवाज शरीफ साहब को विजडम आ गया, वो बड़े हो गए हैं। वो मान गए बात, लड़ नहीं सकते ना। लड़ा था ना वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ, पहुंच गया, लड़ नहीं अच्छा, सकते। अब वो नेक चादरन का यानी कि वादा करके दोबारा घर बसाने आए हैं, अल्लाह भला करे। ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं आपसे कतई इख्तिलाफ करता हूँ। मैंने तो जस्टिफाई किया, आप भी करें। ये ज्यादती है सुनने वाले के साथ। मैं जस्टिफाई इसलिए नहीं करूंगा कि अभी तो मैंने तो खुद कहा कि जी मुझे आज सुबह जिन साहब ने करेक्ट किया है, जिन लोगों ने, वो तो एक हल्के बात हो रही है ना सर। सुनो ना, लेकिन उन्होंने साहब ब्रॉडली ये बात कही थी कि ये लोगों की खाम ख्याली है कि इन्हें उम्मीदवार दिए जा रहे हैं। तो मैंने खुद नहीं कहा, मैंने कहा भाई ये उम्मीदवार लेने पहुंचे हैं, वो दिए जा रहे हैं ना। कलम उठाए एक क्या ये सादिक संजरानी वही नहीं है जिनके खिलाफ तहरीक अदम में तुम्हार पेश की? कलम उठाए अगर नुसरत जावेद सुने। ये समझने को तैयार नहीं है कि वो नवाज शरीफ जिसके पास MQM चल के आई और वो नवाज शरीफ जो खुद चल के क्वेटा गया, अगर ये खाम ख्याली है तो मेरा ख्याल में फिर खामोशी बनती है। खाम ख्याली नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लोगों की खाम ख्याली नहीं है वो ये कह रहे हैं। मैं तो बल्कि ये Impression कह ये दिया जा रहा रहा हूँ, है। मैं तो ये Impression कह ये रहा दिया जा रहा हूँ है। कि उन्हें उम्मीदवार उनका कोयटा जाना ये साबित कर रहा है कि आपको कोयटा जाना होगा, आपके लिए सवारियां तैयार हैं, उन्हें लादिए और आ जाइए। मतलब 2018 वाला जब मॉडल लेकिन होते फिट कर ये कहने के बाद मैं आपसे दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि वो हर तरह के समझौते करने को तैयार होंगे। कम्स दी फाइनल तो पंजाब हाथ से नहीं जाने देंगे। ऑप्शन एक है आपके पास, MCQs में दोनों ऑप्शन टिक कर दो तो आप फेल हो जाते। नहीं तो फिर दूसरे ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी है लखनऊ वापस चले जाओ। क्या है? नवाज इसको शरीफ क्यों rule out कर नवाज दिया? शरीफ ने कश्तियां जला दी, या आपने कहीं कहा था, मुझे याद पर पड़ता मैंने नहीं अभी कहा। नहीं कहा, अभी नहीं कहा। अभी मैंने नहीं कहा ना, जब दिस इज कहूंगा अदनान हैदर नाजरीन। ओए। आज के इस मार्के पे जो मैंने इनके मुंह से निकला, ये आपने नसीम अजाजी का आखिरी मार्का पढ़ा? नहीं, ये मैंने वही किया आपके साथ। मेरा मैंने वही ज़हन- किया आपके मेरा साथ। ज़हन अभी तक इसलिए साफ है कि मैंने नसीब हिजाजी के नावल नहीं पढ़े हैं। ये मेरी नाजरीन आप खुशकिस्मती गवाह है। रहिएगा, इन्होंने कहा कि इन्होंने आप अभी नहीं गवाह कहा। रहिएगा कि मैंने नसीब हिजाजी का आज तक कोई नावल नहीं पढ़ा। नवाज शरीफ ने अल्लाह कश्तियां मुझे नहीं माफ़ जलाई, आपने अभी नहीं मैंने कहा। कहा कि अभी तक नहीं अभी जलाई। तक अभी तक नहीं जलाई। कहने को लिए तैयार है। इनका विजडम जो है वो बिल्कुल तैयार बैठा है। ब्रेक ले लेते हैं सर। वेलकम बैक नाज़रीन। नुसरत साहब, मैं तरस गया हूं कि आपके तबसरों में किसी भी पाकिस्तानी सियासतदान के लिए कभी कोई अच्छी खबर हो। वैसे एक बात बताएं, ये पाकिस्तानी सियासतदान इतने नाखुश क्यों आप इनसे? बहरहाल आप अपना इंट्रो बनाए, बताइए हाँ, कि तो अब हम किस मौजू पे जा रहे ये हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात में कर रहे हैं, ओ मेरे इसी से भाई। लिंक्ड है मेरे भाई। ओ भाई खुदा का सर, वास्ता चलो गुजार इससे- करना करें, टाइम नहीं है। आप आपने हमारे बुरी पास खबर, टाइम जब से मैं यहाँ बैठा हूं ना, आपने बुरी खबरें फैलाने का कोई मेरे ख्याल पक्का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, और खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आपकी अक्सर बुरी खबरें गलत साबित हो अल्हम्दुलिल्लाह। चले और यही हुआ। मैं मजीद आपकी बुरी खबरों में गुमराही का शिकार हो गया था। एक बुरी खबर आपने दे दी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बारे में, क्या थी? साइफर वाली, और उसके बाद आपने उसको जस्टिफाई किया, ग्लैमराइज किया इंटरसेप्ट स्टोरी को लिंक करके। तो खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आज आज क्या बरी मेरी होगा उसमें? गुमराही में मुझे आप रोशनी नजर बरी आई। हो गए, साइफर केस खत्म हो गया है, क्या यही हुआ? मसला है। मैं कहता हूँ आप जरा क्या पढ़ा हुआ, क्या करें, है? देखा करें। हाँ तो मैं पढ़ने चाहता हूँ ना। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको एक बड़ा रिलीफ दिया। देन डोंट वेस्ट माय टाइम। हमारे साथ वो ब्यूरो चीफ हैं आमिर अब्बासी साहब हमारे। अस्सलाम वालेकुम भाई आमिर।
जी वालेकुम सलाम सर। भाईजान बजाय इसके कि भाईजान जो है वो मेरा साथ जो है वो यानी मगजमारी में वक्त आया करें, आप स्ट्रेट अवे मुझे बता दीजिए। आपकी बड़ी मेहरबानी फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ज्वाइनिंग, एंड प्लीज टेल मी कि क्या हुआ है साइफर केस में। अच्छी खबर। और उसको अदनान साहब अच्छी खबर क्यों करार दे रहे हैं, लेकिन आप पहले खबर ये बता दें ताकि बाद में तय किया जा सके कि अच्छी है या बुरी है। नुसरत साहब थैंक यू सो मच। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस अपील पर समाअत हुई जो तहरीक इंसाफ की तरफ से, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से दायर की गई थी। पहले उन्होंने इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में चैलेंज किया था, जिसमें साइफर केस की समाअत करने वाली जो खुसूसी अदालत है जो जेल में जाकर इन कैमरा ट्रायल कर रही है और जेल ट्रायल किया जा रहा है, उसमें दो इश्यूज को चैलेंज किया गया था। एक जेल ट्रायल को कि जो जेल ट्रायल है वो फेयरनेस के और ओपननेस के खिलाफ है और ये बुनियादी जो हुकूक हैं वो सल्ब किए जा रहे हैं, इसमें नहीं हो रहे। और दूसरा अपॉइंटमेंट ऑफ जज जो इस खुसूसी अदालत के जज हैं उनकी तकर्री को, इन दोनों ग्राउंड्स को पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में चैलेंज किया गया था जिसमें उनकी दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया था। लेकिन आज हैरान कुन तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने जब इसी सिंगल बेंच के ऑर्डर के खिलाफ अपील दायर हुई तो उस अपील के ऊपर स्टे ऑर्डर दे दिया है और एक बड़ा रिलीफ मिला है पीटीआई को और उनके जो लीडर हैं उनको, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फौरी तौर के ऊपर रोक दिया है जेल ट्रायल से और अटॉर्नी जनरल खुद पेश हुए, पूरी जो हुकूमत है और जो तमाम दीगर प्रोसिक्यूटर्स थे। एक मिनट आमिर मेरे भाई, हो ये रहा है कि अदनान हैदर साहब जो हैं वो जज्बात में आके उनका तो ये ख्याल है कि जैसे केस ही ड्रॉप हो गया, तबाह हो बर्बाद हो गया, रिलीफ इन अ सेंस कि गालिबन आप ये अब जेल ट्रायल नहीं होगा ना सर। मेरी इल्तिजा तो सुन लेना, लेट आमिर एक्सप्लेन ना सर। मेरा अपना ख्याल है कि आप इस बात की वजाहत कर दें कि क्या कैटेगोरिकली आज के फैसले में अदालत ने ये कहा है कि आइंदा से अब इस केस का जो ट्रायल है वो ओपन होगा, या अटॉर्नी जनरल को कहा है कि अभी तक आपने जो दलाइल दिए हैं इस ट्रायल के जेल में होने के, उससे हम मुतमिन नहीं हैं, कुछ और आप ग्राउंड्स बताइए। इन दोनों में अगर फर्क है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। अजी नुसरत साहब, बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है उसमें ट्रायल कोर्ट को मजीद ट्रायल करने से रोक दिया है। अभी इस हवाले से साथ में रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है कि जो जेल ट्रायल है वो किन ग्राउंड्स के ऊपर की गई है, लिहाजा मेन ट्रायल ही रुक चुका है। ये एक बड़ा रिलीफ है मौजूदा हालात में। जो इस वक्त पीटीआई की कानूनी टीम की कोशिशें थी, मुख्तलिफ फोरम्स पर वो जा रहे थे और हर चीज को चैलेंज किया जा रहा था। बहुत से फोरम्स पर रिलीफ तो मिल गया, रिलीफ मिला है ना। आपने मुझे याद है आपने ये कहा था कि जेल में होने वाला ट्रायल और सीक्रेट एक्ट के तहत होने वाला ट्रायल उनके लिए खतरनाक होगा, तो एक रिलीफ मिल गया भाई मेरे। लेकिन वही बता रहे हैं ना कि फिलहाल ट्रायल को रोक दिया गया है ना। जी बिल्कुल, फिलहाल ट्रायल को रोका गया है। फिलहाल के लफ्ज पे गौर करो ना भाई। ठीक है, मैं अब ये बताएं कि जो जजेस और वकला के दलाइल थे और उनके रिमार्क्स थे और उसके बाद उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा कि वो नोटिफिकेशन भी लाई है, उससे क्या मतलब आप क्या समझते हैं, क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा? अदनान साहब, बेसिकली तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरे ट्रायल के ऊपर भी सवाल उठाया है और इसकी बुनियादों के ऊपर भी सवाल उठाया है कि कैसे, किन ग्राउंड्स के ऊपर आपने इस केस को जो है वो जेल ट्रायल करार दिया, क्योंकि अदालत बार बार ओपननेस की, फेयरनेस की बात कर रही है और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो जिनके बारे में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता क्योंकि हमेशा वो बहुत ही ज्यादा बोल्ड डिसीजन करते हैं और हमेशा वो फेयरनेस की बात करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि इंसाफ न सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए। इसी तरह उन्होंने कहा कि जो फेयरनेस की बात हो रही है कि मुलजिम का ट्रायल हो रहा है तो उसमें फेयरनेस न सिर्फ होनी चाहिए बल्कि होती हुई नजर भी आनी चाहिए। यही वो रिमार्क्स थे जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दिए। अटॉर्नी जनरल ने यह बताया कि उसमें अगर कोई कमी थी तो हमने वफाकी काबीना से भी मंजूरी ले ली है कि इस मुकदमे का ट्रायल जो है वो जेल में होना चाहिए। तो उस पर भी अदालत ने कहा कि ट्रायल पहले शुरू हो गया और काबीना से मंजूरी बाद में ली गई। हाँ बिल्कुल ठीक। ये दूसरा साहब देखिए, ये 4-5 पॉइंट तो क्लियर हो गए ना आपको। अब आप देखिए, आप फिर वो आमिर से मुझे पहले बातें समझ लेने दें। आमिर भाई मुझे आप ये बताइए, देखिए कि अदनान साहब, खुदा न खास्ता मैं हूँ, आप हूँ या अदनान हिमसेल्फ, हम किसी का बुरा तो नहीं चाहते ना। अगर किसी भी मुलजिम को किसी भी नौइयत की जायज़ बुनियादों पर रिलीफ मिल रही है तो हम सबको उसके बारे में खुशी का इजहार ही करना चाहिए। लेकिन कहीं भी ये तो नहीं किया जा रहा ना कि जी उनके खिलाफ जो चार्जेस हैं वो बेहुदा हैं, बेबुनियाद हैं।
اصل سوال تو یہ جو عدالت اٹھا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس مینر میں آپ نے یہ فرد جرم عائد کی ہے یا جس انداز میں آپ اس فرد جرم کو پرسو کر رہے ہیں وہ کورٹ وہ اس کی پروسیڈنگ جو ہے وہ صرف اس کو خفیہ رکھنے کا عوام سے چھپانے کا کوئی جواز نہیں ہے. غالباً دس از دی آپریٹو پارٹ آف ججمنٹ, نہیں تو یہ کلیئر کر دیں. جی بالکل آپ نے درست فرمایا نصرت صاحب. عدالت کا بھی یہی موقف ہے اور جو آرڈر ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ عدالت کسی بھی صورت میں ان چارجز کو نہ ختم کیا گیا, نہ ہی کہیں ٹرائل کے بارے میں یہ کہا گیا کہ کوئی میلا فائڈی ہے یا کوئی بدنیتی ہے. عدالت صرف اور صرف اوپننس کی بات کر رہی ہے, فیئرنس کی بات کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ کہیں یہ تاثر نہ جائے کہ کوئی ٹرائل میں کسی بھی قسم کا کوئی شکم ہے. ایک پوائنٹ میں چاہتا ہوں کہ تاکہ میں نصرت صاحب کو, میں یہ نہیں کہا کہ نصرت صاحب کو ہم نے پھنسا ہی لینا کہ انہوں نے غلط تجزیہ پیش کیا تھا, غلط تبصرہ کیا تھا. سر آج ججز نے یہ دو باتیں کہیں کہ آپ نے جو وکیل بھی ایگزیکٹو نے دیا, جج سوری جو وہاں پہ اس پروسیڈنگز کے لیے تھا, اور سیکنڈ جو جیل ٹرائل تھا وہ بھی کابینہ کی طرف سے آیا کہ یہ بات ہوئی آج کورٹ میں. بالکل عدنان صاحب, یہ وہ بنیادی نقطہ تھا جس پہ ٹرائیکوٹمی آف پاورز کی آگے یہ پروسیڈنگز چلیں اور جو ٹرمز نصرت صاحب جو خدشات کا اظہار کریں انہی پہ چلیں, تو یہ آج والی یہ 2 پوائنٹس فائدہ دیں گے ٹرائل میں کہ انہیں نہیں دیں گے؟ جی بالکل فائدہ ان کو دے رہے ہیں, اسی وجہ سے اسٹے آرڈر بھی ملا, ان کو ریلیف بھی ملا. لیکن اب صرف یہ 3 دن کا ریلیف ہے, 3 دن کا اسٹے آرڈر ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ جمعرات کے روز اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیا اس آرڈر کو ایکسٹینڈ کرتی ہے یا نہیں کرتی. لیکن بنیادی سوال یہاں پر یہ ہے جمعرات کو پھر جو جرا ہوگی نا اس پہ, جب اٹارنی جنرل نوٹیفیکیشنز لے کے آئیں گے عامر بھائی وہ گراؤنڈ بتائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ, چونکہ عدنان تو بضد ہیں کہ انہوں نے اس میں سے خوشی نچوڑ کے چھوڑنی ہے. یہ بہت بڑی خوشی ہے, کہیں نہ کہیں یہ جب آج کورٹ میں یہ بات ہوئی. گمراہ نہیں کیا کرتے لوگوں کو میرے پیارے. سر آپ کا بہت شکریہ عامر بھائی. یار مارفین کے انجیکشن لایا کرتے, امید پرستی اچھی چیز ہے. دیکھیے عام تاثر فوری طور پر آپ اس بات کو پسند کریں یا نہ کریں, میں کروں یا نہ کروں, چیئرمین تحریک انصاف پاکستان کے مقبول ترین سیاسی رہنماؤں میں سے ایک ہے. میں تو کرتا ہوں اس بات کو. اب یہ خبر جس انداز میں ابھی تک آئی ہے اور آپ جو بار بار اس میں ریلیف اور بھنگڑے اور میں غلط ثابت وغیرہ وغیرہ وغیرہ, وہ آپ کی خوشی اپنی جگہ, لیکن ان کا قانون اور آئین کی نزاکتوں اور باریکیوں سے نا آشنا مداح یہ سمجھ رہا ہے کہ جی مصیبت ختم ہو گئی. یہ ویسا نہیں ہے. میں نے یہ نہیں کہا مصیبت ختم ہو گئی, اس مصیبت میں کمی ہو گئی. یہ ریلیف ہے نا, ویری اسٹرانگ سر ورڈ. دیکھیں لیکن یہ دن گنے جاتے تھے, اس دن کے لیے والی ریلیف ہے کہ 3 دن بعد پھر اسلام آباد ہائی کورٹ از دا اتھارٹی. مانتے کہ نہیں مانتے اس بات کو؟ تو اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جج کی تعیناتی ایگزیکٹوز نے کی. بابو کابینہ نے جیل ٹرائل کا کہا, اس صورت میں ہوتی جیسے بہت اچھے طریقے سے عامر نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ اگر کہیں نہ کہیں یہ ریمارک آ جاتے معزز جج صاحب کی طرف سے کہ ان کے خلاف جو کیس بنایا گیا ہے وہ نظر بظاہر بد نیتی ہے اس میں, اور یہ سوچ نہیں کہہ سکتا بھائی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دا مینر یو آر پروسیڈنگ ود. سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے اب دیکھیں نا, یہ اٹارنی جنرل کو یہ بتانا ہے, اللہ تعالیٰ آپ اٹارنی جنرل کو یہ جسٹیفائی کرنا ہے, اٹارنی جنرل کو جسٹیفائی صرف یہ کرنا ہے کہ وہ کیوں اس ٹرائل کو پبلک اس کی پروسیڈنگز نہیں کرنا چاہتا. اللہ بھلا کرے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہی بات میں کہہ رہا ہوں. لیکن یہ کوئی ریلیف نہیں ہے. سزا اور جزا والا جو چارجز ہیں وہ اپنی جگہ آج بھی موجود ہیں. وہ نواز شریف پہ بھی ہیں, پھر آ رہی ہے بار بار کہ نواز شریف پہ بھی ہیں, تو وہ دونوں کا بار بار ٹائم کی بھی بڑی کمی ہے نا, یہ بڑا مسئلہ ہے. لے لو یار. ویلکم بیک صاحب. ایک ہمارے بڑے سپر سٹار رہے ہیں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب, میں بھی ان کے متاثرین میں ہوں. ان کے جو سو موٹو ہوتے تھے. وسیم ملک صاحب ہیں, آج کورٹ کا ایک بڑا اہم فیصلہ آیا ہے, اور کس طرح پھر بھی بتا دو کہ وسیم ملک ہمارے لیے سپریم کورٹ کور کرتے ہیں پبلک ٹیلی ویژن کے لیے. برائے مہربانی اپنے علاوہ بھی دونوں کسی اور کو دیکھ لیا کرو میرے بھائی. شارع دستور پہ موجود وسیم ملک صاحب ہمارے بڑے انرجیٹک رپورٹر ہیں, اور سپریم کورٹ بھی کور کرتے ہیں, اور کبھی کبھی اہم فیصلہ تو ہائی کورٹ بھی پہنچ جاتے ہیں. وسیم بھائی آج کا فیصلہ ذرا بتائیں کہ کیا تھا, کیونکہ وہ ثاقب نثار صاحب جو چیمبر میں فیصلے سناتے رہے ہیں, وہ عدالت نے کہا ہے آج اعلیٰ عدلیہ نے کہ وہ قانون کے مطابق نہیں ہے. کیا تھا آج کا کیس, اور یہ کیوں کہنا پڑا چیف جسٹس کو؟
देखिए जी, मामला था जो साकिब निसार साबिक चीफ जस्टिस रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक इंसानी हकूक का सेल मौजूद है जो बराह रास्त चीफ जस्टिस की निगरानी में काम करता है। 2005 से ये सेल कायम किया गया था और उसके तहत जो आम साइलिन हैं, जो इंसाफ तक रसाई जिनके लिए मुश्किल होती है, वकील नहीं कर सकते, वो फिर इस ह्यूमन राइट्स सेल को अपनी जो गुजारिशात हैं वो लिखते हैं और उसके बाद फिर उसके ऊपर जायजा लिया जाता है और फिर चीफ जस्टिस जो हैं वो उसके ऊपर नोटिस भी करते हैं। तो एक ऐसा ही मामला था। एक खातून है जो बरतानिया में मुकीम है, पाकिस्तानी है, उन्होंने अपनी एक जो शिकायत थी वो 2017 में इसी ह्यूमन राइट्स सेल को भेजी और उस पर जो उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार थे, उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई की और उस कार्रवाई के बाद फिर जो चैम्बर में ही समात रख ली, दोनों पार्टीज को बुला लिया और उसके ऊपर एक तस्फिया करा लिया और बाकायदा कोई जुडिशियल साइड पर इस मामले को नहीं देखा गया, ओपन कोर्ट में कोई ट्रायल नहीं हुआ। अब वो मामला घूम फिर कर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जब अदालत में आया तो उसके ऊपर फिर उसी केस को एक बार दोबारा टेकअप किया गया और उस मामले पर फिर आज एक तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है और उसमें जो इन चैम्बर इसी ह्यूमन राइट्स सेल के ऊपर जो साकिब निसार साहब फैसले करते रहे हैं उनको गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दिया गया है, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो ओपन कोर्ट में नहीं हुआ। आम रूटीन में हम ये देखते हैं कि इसी ह्यूमन राइट्स सेल से जब कोई भी साइल सुप्रीम कोर्ट को लिखता है तो उसके बाद पूरा एक मैकेनिज्म है, उसको फिल्टर किया जाता है और अगर वाकई ही कोई इस तरह का वाकया होता है तो फिर जो रजिस्ट्रार हैं या जो डायरेक्टर हैं ह्यूमन राइट के, वो चीफ जस्टिस को फाइल भिजवाते हैं और चीफ जस्टिस आइन के आर्टिकल 184(3) को इस्तेमाल करते हुए हमारे देखने वालों की इनके नॉलेज के लिए क्या हम ये कह सकते हैं कि बुनियादी तौर पर ये मुकदमा जो है एक हाउसिंग सोसाइटी की मिल्कियत से मुताल्लिक था और शिकायत कुनंदा का ये इसरार था कि माजी में बहुत ही ताकतवर रहे चकवाल के एक साहब जिनसे लोग बहुत फैज़ याब होते रहे हैं, वो इस शिकायत कुनंदा के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिए उस पर मिल्कियत हासिल करना चाह रहे थे और उसको किसी और को इंतकाल की तरफ लाने के लिए दबाव बढ़ा रहे थे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस बार भी जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अदालत में आया तो इस बार भी वो जो एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक हैं, प्रॉपर्टी टाइकोन हैं, उन्होंने कुछ माजी के जो वजारत दिफा के मातहत अफसरान थे उनके ऊपर कुछ सीरियस एलिगेशंस लगाए और कुछ उनके ऊपर जो इल्जामात थे वो बड़े सख्त नोयत के थे। उन्होंने ये मामला 3 नवंबर को यानी इसी माह ही सुप्रीम कोर्ट के ह्यूमन राइट्स सेल को भेजा और फिर हैरान कुन तौर पर 8 नवंबर को दौरान समात ही ये मामला टेकअप हो गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा थे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे और जस्टिस जो तीसरे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस रहे हैं अतर मिनुल्लाह, वो थे। तो जैसे ही ये केस टेकअप हुआ तो वहां पर हम जब कोर्ट रूम में मौजूद थे तो हमें दोनों मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो चीफ जस्टिस के दाएं और बाएं बैठे थे उनके चेहरों से, उनके तासुरात से ये पता चला कि उन्हें भी इसी लम्हे पता चला है कि ये मामला टेकअप हो चुका है। तो फिर उस केस को सुना गया। जब वो दरखास्त गुजार रोस्टम पर आए तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा जी कि माजी में तो आपके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट की ह्यूमन राइट्स सेल में एक खातून है बरतानिया से, उन्होंने आपके ऊपर भी मुकदमा किया हुआ है, तो क्यों ना वो मुकदमा भी इसी केस के साथ टेकअप कर लिया जाए। फिर वक्फे में समाअत हुई, दोबारा जब केस की समाअत हुई तो उस खातून का मुकदमा भी टेकअप कर लिया गया। तो ये जो केस है इसकी बुनियादी जो कड़ी है वो 2017 में जाकर मिलती है, जब इस्लामाबाद का एक पोश एरिया है F11, वहां पर 2017 में छापा मारा गया और मीडिया में ये उस वक्त रिपोर्ट हुआ कि कुछ टेररिस्ट हैं या टेररिस्ट को कुछ फाइनेंस करते हैं लोग, एक हाउसिंग सोसाइटी, उनके घर से कुछ जो पैसे हैं वो भी रिकवर किए गए, गोल्ड की मद में भी कुछ रिकवर किया गया। तो वही जो प्रॉपर्टी टाइकून थे वही ये मामला यहाँ पर लेकर आए थे और आज उस हुक्मनामे में जो दरखास्त है वो निपटा दी गई है उस प्रॉपर्टी टाइकून की भी, और उसमें यह कहा गया है कि चूंकि वो वजारत दिफा के मातहत अफसरान थे जिनके ऊपर आप ये इल्जामात लगा रहे हैं तो आप वही रेमेडी इस्तेमाल करें। ये मुकदमा एक्ट के आर्टिकल 184(3) पे पूरा नहीं उतरता। बिल्कुल नुसरत साहब, एक तो ये देखो ना, मुफादे आमा के नाम पर देखो 8043 आज खुद नोटिस बुनियादी तौर पे क्या है कि एक ऐसा कोई एक मसला जो बहुत वसी पैमाने पर खल्क़े खुदा जिससे मुतासिर हो रही हो, बुनियादी तौर पर ये एक प्रॉपर्टी है, एक हाउसिंग सोसाइटी है, उस पर झगड़े हैं। अच्छा भाई, उसमें भी अगर आपने इंसाफ मुहैया करना है, आप समझते हैं कि ज्यादती हुई थी, तो भाई इन चेम्बर क्यों, मतलब कि कमरे चाह के मुक्का करा लो।
मुक मुक बाबा रहमते ने एक्चुअली अपना चेंबर नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मंजी बिछाई इसी दरख्त के नीचे, पंचायती। वो ना पंचायत। अच्छा, पंचायती वो बड़े अच्छे थे। अच्छा, अब 190 मिलियन वाला भी अब दूसरी खतरा पंचायत ये में है नतीजा कि ना सर। आज तो कुछ ऐसे फैसले अंडू हुए हैं जो उन्होंने चेंबर में दिए थे। आप कहीं ऐसा ना हो ये रिवाइवल पड़ी है तो ओपन दिए हुए ओपन फैसले। फैसलों का तो खैर नहीं, इतना भी बहुत, लेकिन उनकी ओपन फैसलों में कहाँ है? जरा दोबारा कहना। ऐसा नहीं होता ना दादा, कहीं ना कहीं एहतराम जरूर होता है साहब फैसलों का भी, अदालत को प्रेसिडेंट है ना। अच्छा, कोई और रास्ता बनाया जुल्फकार अली भुट्टो की सजा को वापस कर दें। नहीं तो वो अगर सजा वापस भी कर लूं तो क्या वो बेचारे वापस तो नहीं आ आप सकते ना। किसी गुजरे हुए शख्स को तमगा जुर्रत दे सकते हैं, सदारती अवार्ड दे सकते हैं, तो वो जुल्फकार अली भुट्टो का दोबारा ट्रायल कर लेना। क्योंकि आप अभी थोड़ी देर पहले आप थोड़ी देर प्रोग्राम के आगाज में आप किसी साहब की उनके प्रैक्टिकल होने को बहुत सराह रहे थे। ऑफ कोर्स मैं सराह रहा था। तो वो सराहने के लिए एक फैसले का वापस लिया जाना या उसको नरम करना तो जरूरी है ना। हो सकता है ताहयात वसीम नाअहली वाला। जहाँ खड़े हैं देखे ना, वो आपको नजर आ रही है ये सफेद बिल्डिंग और सफेद कबूतर, सफेद और उधर हाथ में भी कबूतर था, यहाँ भी कबूतर है, इसके भी हाथ में कबूतर था। अच्छा, क्या वसीम अपने तजुर्बे से बताओ, क्या आप जिस जानिब हम इशारा कर रहे हैं, आप चीजें आज के फैसले के बाद उस जानिब निकलने की भी कोई गुंजाइश नहीं कर रही हो? 62-1F कहना चाह रहे हैं नुसरत जावेद साहब, इनके मुंह अरे से निकल नहीं रहा, इतना बच्चा इनके नहीं है मुंह से वसीम। निकल नहीं रहा। अरे वसीम ये अदनान हैदर ये डोंट जो बोल सकता है। अंडरमाइन हिज टैलेंट एंड। हाँ वसीम, आप बताइए, आप राय दीजिए इंडिपेंडेंट अपनी। देखिए, साकिब निसार के आयन के आर्टिकल 184(3) के तहत माजी में सियासतदानों के खिलाफ भी बड़े सख्त फैसले दिए जाते रहे हैं जो पाकिस्तान की अदालती तारीख का हिस्सा हैं, मगर जिस तरह ये आज एक फैसला गैर कानूनी करार दिया गया है, इसकी कोई लीगल शेल्टर, कॉन्स्टिट्यूशनल शेल्टर मौजूद नहीं था। मगर जो ओपन कोर्ट में मामलात, चाहे सोमोटो की पावर हो या 184(3) की दरखास्तें हों, उनके तहत जो फैसला आया है उसे गैर आईनी और गैर कानूनी करार नहीं दिया जा सकता। हाँ, उनके ऊपर अब जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ चुका है, उसमें 184(3) में अपील का हक दिया गया है, तो अगर उस वक्त वो जो रेमेडी इस्तेमाल नहीं की गई थी रिव्यू की, उसके ऊपर कोई अपील फाइल होती है, उसके ऊपर लार्जर बेंच बनता है पहले बेंच से ज्यादा, और वो जो पुराना फैसला है उसे कालादम करार दे दिया जाता है, तो इस सूरत में तो मुमकिन है कि माजी में किए गए साकिब निसार साहब के वो फैसले जिसमें 184(3) की जो जुरिस्डिक्शन थी वो इन्वोक की गई थी, वो तो रिवर्स हो सके। मगर इस तरह जैसे ये मामले में उनकी जो चैम्बर ऑर्डर्स थे वो रिवर्स किए गए हैं, तो ओपन कोर्ट में हुए फैसले उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल शेल्टर। बहुत शुक्रिया वसीम मलिक साहब आपका। नुसरत साहब, मेरे ख्याल में आप मुझे प्रैक्टिकल होने मैं प्रैक्टिकल होने अच्छा, जा रहा हो हूं। जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नाजरीन, मेरे ख्याल में अल्लाह हाफिज आप कह दें। थैंक यू।